Hello, dear students. This is a part 2 of A House is Not a Home. Till now, we have completed part 1 up to this, where we saw that the author's house was fully set on fire. उसके घर में आग लग गई थी and everything was burnt in the house. His clothes, his books, whatever money, whatever things were there in his house, everything was burnt, and his lovely cat was also away from him. So ultimately, after the burning of their house, they went to the house of their grandparents. Up to this we have read in part 1. Now let us see part 2. The next Monday I went to school. When the fire broke I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. Same clothes he had been wearing, but he was without clothes because when the fire set out in his house, he suddenly ran out without shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. वो आग में जल गए. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. Why couldn't I just stay home from school? मैं घर क्यों नहीं रह सकता था स्कूल से बिना? My mother wouldn't hear of it. मदर इसके बारे में मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी. I was totally embarrassed by everything. मैं हर एक चीज़ से embarrass हो चुका था. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework. जो कपड़े मैंने डाले हुए थे वो बहुत गंदे हो चुके थे. I had no books or homework. मेरे पास बुक्स भी नहीं थी, कोई होमवर्क भी नहीं था. And my backpack was gone. और मेरा जो बैग है वो जल गया था. I had my life in that backpack. उस बैग में, मेरे स्कूल बैग में मेरी जान थी, ज़िंदगी थी. The more I tried to fit in, the worse it go. जितना मैं कोशिश कर रहा था स्टडी में आगे बढ़ने की, उतना ही मेरे साथ बुरा हो रहा था. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? क्या मुझे outcast and geek? What is the meaning of these words? Cast out means uh, cast out socially. Was I destined to be an outcast? Destined मतलब क्या मेरे भाग्य में कास्ट आउट सोशली लिखा था, मतलब समाज से बहिष्कृत. मतलब ना तो मेरा घर रहा, ना मैं स्कूल भी मेरा पुराना बदल गया, और मेरा घर का सारा सामान जो है वो जल के राख हो गया. तो मैं समाज से बिल्कुल बिल्कुल रोड पे आ गया था. एंड was I destined to be an outcast and a geek? What is the meaning of geek? Geek means foolish. क्या मुझे सारी उम्र ऐसे मूर्ख बन के रहना था, फुलिश बन के ही, बेवकूफ़ बन के रहना मेरे भाग्य में लिखा था. डिस्टाइंड का मतलब होता है भाग्य में लिखा होना. दैट इज़ वॉट इट फेल्ट लाइक. ऐसा मुझे महसूस हो रहा था. आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. मैं इस तरीके से बड़ा होना नहीं चाहता था, इस तरीके से चेंज नहीं होना चाहता था, और हैंडल लाइफ, मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को हैंडल या चेंज नहीं करना चाहता था अगर ज़िंदगी इस तरह से बीतनी थी तो. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने आप में सिकुड़ कर जो है वो मर जाऊं. 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद, सॉरी, आई वॉक राउंड लाइक ए जोम्बी. एवरीथिंग फेल्ट सरियल. आई वॉक लाइक ए जोम्बी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोम्बी? ए लेजी पर्सन. मैं जो है एक सुस्त, डल, अपैथेटिक पर्सन की तरह मैं घूम रहा था. एवरीथिंग वॉज फेल्ट सरियल. सरियल मीन्स टोटली स्ट्रेंज. हर चीज़ जो है मुझे अजीब लग रही थी. द मीनिंग ऑफ सरियल इज़ स्ट्रेंज, अजीब. एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन.
All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. रिप्ड अवे मीन्स broke open, सब चीज़ें जो है वो मेरे से हाथ से जा चुकी थी. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had been burnt was destroyed by the water and chemicals they had used to put the fire. कहते कि स्कूल के बाद जब मैं घर की तरफ जा रहा था, मेरा जो घर जला हुआ दिखा, हर चीज़ जो है वो ख़राब हो गई थी. अगर वो जली नहीं थी तो वो जो वाटर केमिकल यूज़ किया गया था आग को बुझाने में, उससे सब कुछ ख़राब हो गया था. द ओनली मटीरियल थिंग्स not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. बची कौन सी चीज़ें थी? बस फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और सम अदर पर्सनल आइटम जो मेरी मदर ने बड़ी बहादुरी के साथ अंदर भाग कर आग में जाकर बचा ली थी. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर. मेरी बिल्ली जो है वो मेरे से जा चुकी थी दूर और मेरा दिल जो है उसके लिए रो रहा था, पेन कर रहा था. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. अब दुख मनाने का कोई फ़ायदा नहीं था. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. अब दुख मनाने का समय नहीं है. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. मेरी मदर ने मुझे घर में से बाहर निकाला. हमें एक नई जगह रहना था. एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. और स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स. पैसे ग्रैंड पेरेंट्स से उधार मांगने पड़े क्योंकि देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. और कोई आइडेंटिटी भी नहीं थी, कोई पासबुक भी नहीं था जिसके बेस पे हम बैंक में से पैसा निकलवा पाते. एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक. आग के अंदर सब कुछ जलकर राख हो गया था. दैट वीक द रबल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रबल? रबल मीन्स द रबिश, द डेब्रिस जो बच गया था उसके ब्रोकन पीसीज ऑफ द हाउसेस. That week, the rubble that had used to be our house was being cleared of the lot. उसे साफ किया जा रहा था. Even though we had rented an apartment nearby, हमने आसपास एक मकान किराए पर ले लिया था. I would go over to watch them clear away debris. Debris means the remaining wreckage, कचरा जिसको बोलते हैं, of the house, hoping that my cat was somewhere to be found. इस debris में से, इस मलबे में से मेरी बिल्ली कहीं से मिल जाए. She was gone. वो जा चुकी थी. I kept thinking about her as that vulnerable little cat. Vulnerable means that is easily affected, जो काफ़ी जल्दी अफेक्ट हो सकती है. That is called vulnerable. In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me. अर्ली मॉर्निंग में जब उसको मैं डिस्टर्ब करता था तो शी वुड टैग अलोंग आफ्टर, वो मेरे पीछा करती थी. क्लाइंब अप माई रोब, वो मेरे कपड़ों पे चढ़ जाती थी. क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप, मेरे पॉकेट में धीरे धीरे चलती ताकि सो जाए. आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, मैं जो उसे बहुत याद कर रहा था. इट ऑलवेज सीम्ड दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. जैसे कि पता है कि बैड न्यूज़ जो होती हैं बहुत जल्दी फैलती हैं अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया हो. एंड इन माइन केस इट वॉज नॉट डिफरेंट, मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ. एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट. स्कूल में हर कोई, बच्चे, इवन कि टीचर्स को भी मेरे दुख का पता चल गया था. आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल. मैं बड़ा एम्बेरस था, मुझे बड़ी शर्म आती थी. यूँ लगता था कि जैसे मेरी इस
हालत का जिम्मेवार मैं खुद हूँ। वॉट ए वे टू स्टार्ट ऑफ एट न्यू स्कूल। किस तरीके से मैं नया स्कूल स्टार्टिंग कर रहा था, इस तरीके से दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। इस तरह की अटेंशन मुझे अपने नए दोस्तों से, नए टीचरों से नहीं चाहिए थी, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ऑथर ये कह रहा है कि मेरी इरादा ये नहीं था कि लोग मेरे ऊपर तरस खाएं, दया की दृष्टि से वो मेरे को देखते, ये ऐसी कोई इंटेंशन मेरी नहीं थी। लेकिन सभी मुझे इस नज़र से देख रहे थे कि ये वो लड़का है जिसका सब कुछ छिन गया, इससे इसका घर में आग लग गई, घर जल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। कहते नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया, लोग बड़े अजीब सा बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। लोग मेरे, माइलिंग अराउंड मतलब इकट्ठे हो रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे कह जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। मुझे ये बड़ा अजीब लगा, और पिछले कुछ हफ्तों से नथिंग वुड सरप्राइज मी, ऐसा मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव इन टू द जिम। वो मेरे को पुश करने की कोशिश कर रहे थे। शोव का मतलब क्या होता है? पुश करना। बड़े एक्साइटेड थे कि जल्दी चलो, जिम में चलो। देन आई सा वाई। फिर जाके मुझे पता चला ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या था सरप्राइज मेरे के लिए। देयर वॉज ए बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। एक बहुत बड़ी टेबल थी, उसके ऊपर हर तरह का सामान रखा हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या, द स्टूडेंट्स दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए एंड बोट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेटसूट्स। द ऑथर सेज दैट कि मेरे दोस्तों ने अमाउंट इकट्ठी करके, कलेक्शन इकट्ठी करके मेरे लिए बुक्स, नोटबुक्स, क्लोथ्स, स्वेटशर्ट, टॉप सूट सब कुछ इकट्ठा किया। इट वॉज लाइक क्रिसमस। ये तो एक क्रिसमस की तरह लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, आज वो अपने आप को मेरे साथ इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज। उन सब ने मुझे घर आने के लिए इनवाइट भी किया। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न। उनकी जो कंसर्न, चिंता जो मेरे लिए वो व्यक्त कर रहे थे, वो एक तरह से जेन्युइन थी। आउटपोरिंग मतलब कहना, जो मेरे से बातें कर रहे थे वो बिल्कुल जेन्युइन लग रहा था। रियली टचड मी। इन दैट इंस्टेंट आई finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. कहता उस समय मैंने चैन की सांस ली, a sigh of relief, और मुझे पहली बार मैंने सोचा कि things were going to be okay, अब things जो हैं वो सब सही हो जाएंगी। I made friends that day. उस दिन मैंने फिर से दोस्त बनाए। A month later I was at my house watching them rebuild it. फिर एक महीने बाद मैंने देखा कि मेरा घर बना रहे थे। But this time it was different. इस बार थोड़ा सा अलग था। I was not alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. What is the meaning? It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity. एक आग लग गई थी कि मैं अपनी जो फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी थी, इनसिक्योरिटी में फील कर रहा था। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। अब जो है मैं बैठा हुआ था और मेरे घर के सामने, मेरी आंखों के सामने जो है वो घर बना रहे थे। माई हाउस वॉज बीइंग रीबिल्ट।
बहुत अच्छी बात कह रहा था कि मेरा घर बन रहा था, एंड व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग, मतलब मेरी लाइफ भी दोबारा से बन रही थी। केवल घर ही नहीं बन रहा था, वो मेरी जो लाइफ है वो दोबारा से बन रही थी। अब उसका घर वापस आ गया है, उसकी बुक्स किताबें सब कुछ वापस आ गया है। वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब, जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे बाहर कॉर्नर पे, कर्ब होता है कॉर्नर, किनारा, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मुझे अचानक से पीछे से आवाज़ आई और किसी ने कहा, क्या कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारा है। डज दिस बिलोंग टू यू, अब क्या चीज़ थी उस पर्सन के हाथ में, लेट अस सी, कि व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैंने देखा कौन है, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कौन था? ए वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, ओ माई गॉड, एक औरत खड़ी थी और मेरी बिल्ली को अपनी बाहों में लिए हुए। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेंस आर्म्स, लेफ्ट अप का मतलब होता है एक तरह से जंप लगाना, और अपनी बिल्ली को उसके हाथों से ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया मैंने। आई हेल्ड हर, यू कैन सी दिस थिंग, आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू द ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, मैं रोने लग गया उसके अपने हाथों में लेकर। शी पर्ड हैप्पीली, पर्ड मीन्स साउंड ऑफ कैट। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे फ्रेंड जो है वो मेरे को हग करने लग गए, ये तुम्हारी बिल्ली भी वापस आ गई है। हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. एक्चुअली हुआ क्या था कि जब आग लगी थी वो इतनी डर गई थी कि वो घर से भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर था, बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, हमारे फ़ोन डैमेज हो गए थे, एंड डिसकनेक्टेड। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, इस वुमन ने काफ़ी मेहनत की ये ढूंढने की ये बिल्ली किसकी है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed, उसे पता था कि ये कैट को बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और इसको मिस कर रहे होंगे। Sorely means greatly. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मेरी कैट जो है curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish, जैसे ही कैट ने जो है मेरी गोद में आई, all the overwhelming feelings of loss, इतनी भी लॉस की फीलिंग्स थी जो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी, एंड ट्रेजिडी, जो मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी, seemed to diminish, ऐसे लग रहा था कि वो कम हो गए हैं। डिमिनिश का मतलब, seem to diminish का मतलब लेस, दैट हैड बिकम लेसन, वो कम हो रहे हैं। I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. I felt gratitude, मैं एहसानमंद था, gratitude means एहसानमंद, for my life, my new friends, my new friends, and the kindness of a stranger. My cat was back, and so was I. It was very important line. My cat was back. मेरी बिल्ली वापस आ गई थी, and so was I means मैं भी वापस अपनी उस हैप्पी लाइफ जो मैं आग लगने से पहले जीता था उस लाइफ में वापस आ गया था। So dear students, this is the story of a boy, a teenager who had suffered a lot and who had faced a lot of challenges in his life. But time is a great healer. He didn't lose confidence. His friends, his teachers helped him to rebuild. His house was rebuilt, and so was he. So, whatever situation comes in our life, we should not lose our confidence. Rather, we should face the challenges of the life. This is the lesson of this lesson.
So I hope you well understood this chapter. Read the text, complete its question answers and summary. If you face any problem, you may discuss with me. Thank you. Have a nice day.